So today's I have discussed about the quadratic equations. Do you know about the quadratic equations? Quadratic equations means the degree of polynomial is 2. The degree of polynomial is 2. Okay, so now ax square plus bx plus c is equal to 0. It is a quadratic. How can you recognize? How can you recognize it is a quadratic? That means their highest power of variable is known as degree. So degree is here. इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर का मतलब वेरिएबल्स पर जो पावर होता है. सपोज दैट हियर वेरिएबल इज ओनली वन एक्स. ए एंड बी आर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स. ये सभी क्या है बेटा? ये सभी इंटीजर्स है. ए बी एंड सी आर इंटीजर्स एंड ए नेवर बी जीरो. ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन कंडीशन ए की वैल्यू यदि जीरो हो जाएगी तो ए मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर में और ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी. उस कंडीशन में क्या होगा? बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो मिलेगा और बी एक्स प्लस सी की जो डिग्री होगी यानी हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि हमारा ए जीरो नहीं होना चाहिए. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. डिग्री मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. यू नो, here is not x, that means their power is 0. Here is 1x, that means x the power is 1, and there is x the power 2, that means the highest power is 2. So it is a degree is 2. So it is a quadratic equation. So it is a general form of quadratic equations, and a b c are integers and a never be 0. Okay, and now I am going to a questions related to the statement type of questions, that is given the situations are there. So one questions I am arising here. The area of rectangular plot, it is given in your NCERT book exercise 4.1 question number 2 and the first sub part of second, right? So the area of rectangular plot is 528 square meter. Okay, the length of the plot is 1 more than twice its breadth. मतलब इसका समझिए, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ को पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देना आसान होता है, लेकिन सभी को समझना आसान नहीं होता. इसलिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना आए. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार क्षेत्र. ठीक है ना? आयताकार क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो. लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई. दैट मीन्स द लॉन्गर एज इज लॉन्ग लेंथ and the wider edge is breadth. Okay, are you getting everyone? So now length is compared to the breadth. That means given here a rectangular plot, their area is equal to 528 square meter. 528 square meter and their length किससे कंपेयर किया गया है? ब्रेथ से कंपेयर किया गया है. और इसमें क्या क्वेश्चंस में दिया है कि लेंथ जो है 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से के 2 गुने से 1 ज़्यादा है. इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम ब्रेथ को कंसीडर कर लें, सपोज दैट कि ब्रेथ हमें मालूम हो कि कुछ भी है, सपोज दैट कि मान लीजिए ब्रेथ है 10, तो 10 के ट्वाइस से 1 ज़्यादा मीन्स 10 to the 20 और 1 more मीन्स 21 उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ. सेम एज इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इफ वी लेट ब्रेथ बी x meter. Okay, question is given there x in meter. Okay, so x in meter, and so length is 2x plus 1, because 1 more than twice its breadth. 1 more than twice its breadth. Are you getting? So now according to question, area of rectangular plot. Area of rectangular plot means you know very well. Area of rectangle you have read in class 5, 6, 7 also, 8 also and 9 also, right? So you have read area of rectangle is always equal to their length into breadth. That means the area of rectangular plot, area of rectangular plot is equal to 528 square meter. It is given here. And you know very well area of rectangle means length into breadth is equal to 528 square meter, and their length is 2x plus 1. That means 2x. Now
2x plus 1 x is equal to 528, right? And on multiplication multiply कैसे करते हैं बेटा? x multiplying 2x then it is equal to 2x square, x multiplying 1 then it is equal to x, and 528 transposing here then it will be minus 528 and there is 0. And you know very well how can solve the quadratic equation by using middle term splitting method. Middle term splitting method. Do you know about the middle term splitting method? That means this number, that means a always multiply by c. First a always multiply by c, and this symbol is most important thing. यदि कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना हो तो सबसे पहला काम होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म में कर दिया करें. कांस्टेंट टर्म में करते हैं तो कितना आता है? 528 मल्टीप्लाई बाय 2 देन इट विल बी इक्वल टू 2 8 is equal to 1056. I think 1056. Okay, so अब 1056 को ऐसे ब्रेक करिए कि दो नंबर्स हों, ऐसे दो नंबर हों जिनका प्रोडक्ट करने पर 1056 मिले. और ऑन सब्ट्रैक्शन एंड दिस सिंबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यदि यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे यहाँ मिडिल टर्म मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है? 1 है. इसका मतलब यदि यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे 1 मिलना चाहिए, यदि माइनस है तो माइनस करने पे मिलना चाहिए. इसका मतलब है कि 1056 को हम ऐसे ब्रेक करें उन दो नंबरों में कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 1056 मिले और माइनस करने पे क्या मिले बेटा? 1 मिले. अब इसे कैसे करेंगे? इसको करा कैसे जाए? तो इसको करने का एक तरीका है, आप इसको क्या करें? फैक्टराइज करना है. इजी होगा क्योंकि बिगर नंबर को थिंक करना थोड़ा सा इजी नहीं होता. छोटे नंबर्स को बहुत आसानी से आप थिंक कर सकते हैं, लेकिन जब बिगर नंबर हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको फैक्टराइज करना. यदि आप इसे फैक्टराइज करते हैं तो आपका आएगा 528 एंड आफ्टर देन 8 मीन्स इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. सो इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा 264. आई थिंक 264 and this is also divisible by 2 132 132 and this is divisible by 2 6 za and 6 za and 2 3 za 3 za and this is 3 1 1 and this is 11 1 za 11. Okay, now 2 2 za 4 4 2 za 8 8 2 za 16 16 2 za 32 और 32 और 11 3 जा 33 11 3 जा बेटा 33. यानी 33 एंड 32 जिनका प्रोडक्ट यानी 33 का प्रोडक्ट यदि 32 से करते हैं आप तो आता है बेटा आपका 1056 और 33 से आप 32 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 आएगी. इसका मतलब है कि हम इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू, आपने क्या किया? इतने नंबर्स का फैक्टराइज किया 32 मिल गया और इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया 33 मिल गया. यानी आप इसे इजीली फाइंड कर लिए कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 1056 मिलेगा और माइनस करने पे 1 मिलेगा. अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इजी टू वे में. 2x स्क्वायर एज यूजुअल आप ऐसे ही राइट करेंगे, यहाँ प्लस भी वैसे ही रहेगा, आपका माइनस 528 भी वही रहेगा, 0 भी यही रहेगा. सिर्फ मिडिल टर्म जो x है उसको हम क्या लिखेंगे बेटा? 33x माइनस 32x, क्योंकि ये सिंबल माइनस का था, माइनस करने पे आना चाहिए. अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे. कॉमन क्या होगा बेटा? इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, नथिंग, क्योंकि 2 से डिविजिबल तो है नहीं और 2 के टेबल में नहीं, ए आएगा लेकिन ये नहीं आएगा और 3 के टेबल में आएगा ये नहीं आएगा. इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन टर्म्स नहीं है, इसलिए हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे? एक्स लेंगे. एक्स ले लेते हैं कॉमन बेटा, तो क्या आएगा? 2x प्लस 33 और सेम एज इट इज यू विल टेक हियर आल्सो. तो इन दोनों कॉमन टर्म्स क्या है? तो इन दोनों कॉमन टर्म्स आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो देखिए पहले तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, देन यू विल टेक द माइनस सिंबल एज अ कॉमन. एंड द सेकंड थिंग, व्हाट्स अ नंबर इज कॉमन? सो 32 इज डिविजिबल बाय 16 and this also divisible by 16, so you will take the 16 common. So here is x 2x plus 33 also, and this is equal to 0. And now in both the terms, which one is common? So 2x plus 33 is here and there also. So 2x plus 33 you will take common, then it will be equal to x minus 16 equal to 0. And now find the zeros. Find the zeros means there are two factors. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी. डिग्री 2 है तो उसके फैक्टर भी 2 होंगे और इन दोनों फैक्टर से हम क्या ले से मिल सकता है? हमें 2 जीरोस मिल सकते हैं. क्या मिल सकते हैं? 2 जीरोस.
plus 33 and product of, can I erase it? Okay, 2x plus 33 and x minus 16 equal to 0. Now अब क्या करेंगे, अब आप इसको होल्ड करेंगे और इसको भेजेंगे डिवीजन में. यदि इसको सेंड करेंगे डिवीजन में तो जीरो में कोई भी वैल्यूज जाती है डिवीजन में, तो जीरो को कोई भी वैल्यू डिवाइड करेगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो. जिससे जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो. जीरो को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो. सो जीरो अपॉन एक्स माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो. दैट मीन्स हियर इज जीरो एंड देयर इज 2x plus 33. Because x minus 16 is going in division, then it will be equal to 0. And now 2x is equal to plus 33 transposing here, then minus 33 divided by 2. Sorry, minus 33 and 2 is in multiplication. ये 2 मल्टीप्लीकेशन में कहाँ जाएगा बेटा, डिवीजन में. x is equal to क्या आएगा, minus 33 divided by 2. और इसे आप कट करेंगे बेटा आएगा minus 16.5. x is equal to क्या आएगा, minus 16.5. अब क्या करेंगे, आप तो एक इससे निकाल लिए. अब यदि इसे होल्ड करेंगे तो क्या होगा, तो नाउ x minus 16 equal to this goes there in division, then it is also equal to 0. यदि ये भी 0 में जाएगा तो ये भी 0 के डिवीजन में जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, x is equal to कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा. अब आप ये बताइए हमें कि इन दोनों कंडीशन में x की वैल्यू क्या आई, माइनस 16.5, और यहाँ x की वैल्यू क्या आई बेटा, 16 आया. ठीक है ना. आप बताइए कि आपने क्या कंसीडर किया है, ब्रेथ कितना होना चाहिए, x मीटर. क्या आप बता सकते हैं कि ब्रेथ की वैल्यू निगेटिव में आ सकती है, क्या कभी ब्रेथ यानी किसी भी लेंथ या ब्रेथ को हम क्या निगेटिव में ले सकते हैं, नहीं ना. इसका मतलब ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे. हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 16 लेंगे, क्योंकि 16 पॉजिटिव में है और कभी भी किसी भी चीज की लेंथ जो होगी निगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव नहीं होगी. इसका मतलब हमारा लेंथ कितना होगा बेटा, 16 होगा, 16 मीटर. एंड ब्रेथ इज 16 मीटर और लेंथ कितना होगा बेटा, 2 into 16 plus 1. दिस मीन्स 2 into 16 means 2 into 16 means 32 plus 1 is equal to 33 मीटर. तो आपको समझ में आ गया बेटा कि क्वेश्चन में दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ दियर लेंथ एंड ब्रेथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ मींस द एरिया इज 528. सो यू हैव टू see here 16 and 33, their product is equal to 528. Okay, if the length is 33 and breadth is 16, then their product is equal to 528 square meter, and the length is one more than twice its breadth na, because one more than means one more than twice its breadth means equal to 33. यानी लेंथ क्या है, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है. समझ में आया सभी कोई क्वेश्चंस, सभी को समझ में आ गया ना. कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी.